رابطہ نیوز کریں گے بات پوری سچائی کے ساتھ۔ آداب ناظرین، رابطہ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ پیش ہے آج کے اہم خبروں کی سرخیاں، ضروری ہیڈ لائنز۔ آر کے پاٹل نے گلبرگہ ڈسٹرکٹ کے الن تعلقہ کے کئی سارے گرام پنچایت میں کاموں کے تحت بڑی رقم گبن کی ہے۔ سابق نائب صدر ضلع پنچایت ہرشانند گتےدار نے لگایا الزام اور کیا چھان بین کا مطالبہ۔ گلبرگہ ڈسٹرکٹ انچارج منسٹر پریانک کھرگے نے کرناٹکا کلین ٹیک سٹارٹ اپ ایکسیلیٹر کو سپورٹ کرنے والے ٹیکنالوجی سٹارٹ اپ پروگرام GIA میٹ میں شرکت فرمائی۔ آج ٹیچرز ڈے کے موقع پر ملی ایک افسوسناک خبر۔ رائچور تعلقہ کے مانوی اسکول کی بس اور پرائیویٹ بس کی ہوئی خطرناک ٹکر، جس میں 2 طالب علم ہوئے ہلاک اور 3 کی حالت نازک۔ گلبرگہ SDPI پارٹی لیڈرز نے ہومن آباد میں منعقدہ لیڈرز میٹ پروگرام میں شرکت فرمائی۔ گلبرگہ ڈسٹرکٹ کے ساتھ ساتھ یہاں کے الگ الگ شہروں تعلقات میں آج ٹیچرز ڈے کو بڑے ہی اچھے انداز میں منایا گیا۔ گلبرگہ ضلع کے سیڑم تعلقہ کے اڑگی گاؤں میں ہوئی تیز اور موسلا دھار بارش، جس میں کئی مکانات ہوئے منہدم۔ اوڑی کباڑیگا سماج کے ایک خاتون کو اغوا کر کے ریپ کرنے کے بعد اس کا قتل کر کے اس کی لاش کو جھاڑیوں میں پھینک دیا گیا۔ ٹیچرز ڈے کے موقع پر گلبرگہ ڈپٹی کمشنر فوزیہ ترنم نے یہاں کی عوام کو دیا بہترین پیغام۔ گلبرگہ شہر ہندوستان کے اور دنیا کے تمام ٹیچرز، تمام اساتذہ جو اپنے ہارڈ ورک اور محنت سے بچوں کو تعلیم یافتہ بناتے ہیں، ان سبھی ٹیچرز اساتذہ کو آج 5 سپٹمبر 2024 ٹیچرز ڈے کے موقع پر رابطہ نیوز کی پوری ٹیم کی جانب سے یوم اساتذہ بہت بہت مبارک۔ ہیپی ٹیچرز ڈے۔ ڈیئر ٹیچرز، پیارے اساتذہ، ہمارے ملک کے بچوں کو اچھی تعلیم دیں، اپنی کڑی محنت اور نالج سے ہندوستان کے تمام بچوں کے فیوچر کو، مستقبل کو بہترین انداز میں سنواریں، کیونکہ ہمارے ملک کے بچوں کے مستقبل کو سنوارنا اور انہیں اچھی تعلیم دینا آپ کی اولین ذمہ داری ہے۔ آج کی اچھی بات۔ ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ ہمیشہ پیار و محبت اور نرمی سے پیش آئیں، کیونکہ دین اسلام ہمیں نرم دلی اور خوش مزاجی کی تعلیم دیتا ہے۔ ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق پر، انسانوں پر 3 احسان ضرور کریں۔ کسی کو نفع فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو نقصان بھی نہ پہنچائیں، کسی کو خوشی نہیں دے سکتے تو اسے رنجیدہ بھی نہ کریں، یعنی کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کریں۔ پیش کرتے ہیں گلبرگہ شہر کے اہم خبروں کی تفصیلی معلومات۔ کرناٹکا گلبرگہ شہر کے آج کے موسم کی جانکاری۔ آج 1 ربیع الاول 1446 ہجری یعنی کہ 5 سپٹمبر 2024 بروز جمعرات گلبرگہ شہر کے آج کے دن کے وقت کا درجہ حرارت 26 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ آج یہاں کے دن کے وقت کا درجہ حرارت زیادہ تر 30 ڈگری سیلسیس سے کم 24 ڈگری سیلسیس رہنے کی پیشن گوئی کی گئی تھی۔ آج یہاں طلوع آفتاب صبح 6:09 پر ریکارڈ کیا گیا، جبکہ آج شام 6:32 پر یہاں سورج غروب ہوا۔ بتا دیا جائے کہ کل یہاں پر ہلکی بارش ہوئی، جس کی وجہ سے کل رات میں پھر سے کچھ گرمی کا احساس ہوا اور آج صبح کا موسم اوسط محسوس ہوا، نہ ٹھنڈا نہ گرم۔ آج گلبرگہ شہر میں سونے کی قیمت میں کل کے بالمقابل اضافہ پایا گیا، جس کے چلتے آج یہاں 10 گرام سونے کی قیمت 69,241 روپیے سے 75,536 روپیے کے درمیان بتائی گئی۔ اور ساتھ ہی بتا دیا جائے کہ آج بھی گیس سلنڈرز ہوم ڈیلیوری چارجز کے ساتھ 850 روپیے سے 1,750 روپیے کی قیمت پر یہاں بیچے جا رہے ہیں۔ اور آج پیٹرول پر لیٹر یہاں 102 روپیے 63 پیسے میں بک رہا ہے، جبکہ ڈیزل پر لیٹر یہاں 89 روپیے 42 پیسے میں فروخت ہو رہا ہے۔ گلبرگہ ڈسٹرکٹ کے الن تعلقہ کے کئی سارے گاؤں پنچایت سے ملی ایک سنسنی خیز خبر۔ جی ہاں، آر کے پاٹل کمک پر بڑی رقم کے گبن کرنے کا الزام۔
जी हां, गुलबर्गा जिला के अलन तालुका के कई सारे गांव पंचायत में एमएलए बीआर पाटिल आर.के. पाटिल कमक ने संतोष भीमाशंकर पाटिल नाम के एक शख्स के नाम पर एक वेंडर का इस्तेमाल करते हुए बगैर कोई काम किए रकम का गबन करने की बदउनवानी की शिकायत मिली है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से बयान देते हुए साबिक नायब सदर हर्षा गुत्तेदार ने इल्जाम लगाया कि इन लोगों ने कई ग्राम पंचायत में बगैर किसी काम के फर्जी बिल बनाकर करोड़ों रुपए की लूटमार की है। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां काम दिखाया गया है वहां कोई काम अभी तक नहीं किया गया। इसी के साथ ही उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी स्कीम के कवायद के मुताबिक जीपी ऑफिस का हुक्म था कि प्रेस रिलीज की जाए और कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर दुकानदारों की शनाख्त की जाए, लेकिन दफ्तर के हुक्म पर अमल न करते हुए महात्मा गांधी जॉब गारंटी स्कीम की धज्जियां उड़ाई गई और कुछ में नाखिस काम करके बिल जमा किए गए। साथ ही इन्होंने इन तमाम बिल के ऊपर शिकायत करते हुए कहा कि जीपी से मंजूरी हासिल करने के बाद ये तमाम काम किया जाता है, लेकिन कई सारे मकामात के अलावा कुछ ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत मेंबरान की तवज्जो में लाए बगैर, एक्शन प्लान तैयार किए बगैर ये तमाम काम किए गए। इसी के साथ ही यहां पर बताया गया कि गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के एनएसएल शुगर फैक्ट्री से भसनूर को जोड़ने वाली सड़कों के तरक्याती कामों के तहत अलन हल्के के तहत देगांव, हाल तड़का, संगुंदा, बसवना, संगोलगी, वालवंडावाड़ी, खानमस, जमगा, दांगापुर ग्राम गांव में सड़कों की बेहतरी के लिए 35 कामों के तहत 1,69,58,500 रुपये की तखमीना लागत के साथ रकम ग्रांट की गई। लिहाजा फिर से कहा गया कि उन्होंने एक ही गांव में एक ही काम को मुख्तलिफ नाम देकर एक ही गांव में कई काम लगा रखे हैं और कोई काम किए बगैर सारी रकम हड़प कर रहे हैं। इसी के साथ ही बताया गया कि दांगापुर गांव में ढांगापुरा भसनूर धत्तर गांव को जोड़ने वाली एक सड़क के काम के लिए 7 से 8 नाम दिए गए और रकम को गबन कर लिया गया। इसी के साथ ही हर्षा गुत्तेदार ने यहां पर मुतालबा करते हुए बताया कि बाज़ मुकामात पर जो सड़कें बनाई गई हैं वो अच्छी मियार की नहीं है। ऐन मुमकिन है कि सड़कें इंतहाई नाक़िस सतह पर बनाई गई और पैसा लूट लिया गया, लिहाजा इन कामों की सदाकत की तस्दीक के लिए जल्द ही एक तहकीकाती टीम मुकर्रर की जाए। तमाम कामों के जायजे के लिए पंचायत राज डिवीजन कलबुर्गी सब डिवीजन अलंदा के जरिए सड़क की नाकिस तामीर जिसने मज़कूरा कामों को मंजूरी दी और नाफिज की, उन तमाम की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो यहाँ का जायजा ले। इसी के साथ ही यहाँ पर यह भी बताया गया कि इस तरह तमाम ग्राम पंचायतों में बड़े पैमाने पर बदउनवानी और गबन किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने यहाँ पर मुतालबा किया कि नाकिस सड़कों की तामीर करने वालों के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जाए और करप्शन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, और अगर कार्रवाई न की गई तो फिर जीपी ऑफिस के सामने कड़े अंदाज में एहतजाज किया जाएगा। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियंक खरगे ने बैंगलोर में मुनक्किदा GIA मीट प्रोग्राम में शिरकत फरमाई। नाजरीन, कर्नाटका हुकूमत EITBT तबके ने अपने ग्लोबल इनोवेशन अलायंस GIA की शुरुआत के साथ अपने तमाम ग्लोबल इनोवेशन अलायंस पार्टनर मुल्क के साथ और इंटरनेशनल बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव के साथ मिलकर बैंगलोर टेक समिट 2024 BTS 2024 को फरोग देने के तहत GIA मीट का आगाज किया। इसी के साथ ही बता दिया जाए कि स्पेशल मीटिंग में मौजूदा कर्नाटका हुकूमत के ITBT और ग्रामीण विकास पंचायत राज के वजीर प्रियंक खरगे के साथ इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव ने यहां शिरकत फरमाते हुए अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। आज 5 सितंबर 2024 टीचर्स डे यौम असातिज़ा के मौके पर जिला सतह पर यौम असातिज़ा की तकरीब और बेहतरीन असातिज़ा को एवॉर्ड देने की तकरीब मुनक्किद की गई। नाजरीन, आज 5 सितंबर 2024 सुबह के वक्त गुलबर्गा जिले और यहाँ के आसपास के ताल्लुका इलाकों में जिला सतह के यौम असातिज़ा की तकरीब मुनक्किद करते हुए बेहतरीन उस्ताद एवॉर्ड, बेस्ट टीचर्स एवॉर्ड मरकजी तकरीब का इनेकाद किया गया। जी हां, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन कलबुर्गी ने बताया कि कोटनूर मठ श्री सिद्धश्री डिवाइन पैलेस कलबुर्गी जेवरगी रोड पर यह तकरीब मुनक्किद की गई और यहां पर प्राइमरी सेक्शन के 15 असातिज़ा और सेकेंडरी सेक्शन के 8 असातिज़ा को जिला सतह के बेहतरीन उस्ताद के अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया। इसी के साथ ही नाजरीन को बता दिया जाए कि गुलबर्गा के साथ साथ गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के कई सारे इलाके ताल्लुका जैसे कि सेरम तालुका, बसनाल, फरहाताबाद, कमासी, चिंचोड़ी तालुका, चितापुर तालुका के कड़गी, जेवरगी, अफजलपुर तालुका, अलन तालुका के कई सारे स्कूल्स में आज अच्छे पैमाने पर टीचर्स डे को मनाया गया।
इसी के साथ ही गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर फौजिया तरन्नुम ने यहाँ की आवाम को बच्चों को इस मौके पर अपने एक मैसेज के जरिए से पैगाम पहुंचाया और बेहतरीन बात कही कि उस्ताद सिर्फ एक शख्स नहीं होता बल्कि वो एक ऐसी ताकत होती है जो कि जिहालत के अंधेरों से हिकमत की रोशनी की तरफ हमें लाती है। साथ ही उन्होंने यहाँ की आवाम टीचर्स को यौम असातिज़ा के मौके पर हैप्पी टीचर्स डे कहते हुए मुबारकबाद पेश की। गुलबर्गा एसडीपीआई पार्टी लीडर्स ने कल चाहशंबे के दिन होमनाबाद में मुनक्किदा लीडर्स मीट प्रोग्राम में शिरकत फरमाई। जी नाजरीन, होमनाबाद में कायम लीडर्स मीट में शिरकत फरमाते हुए गुलबर्गा एसडीपीआई पार्टी लीडर्स ने इफेक्टिव लीडरशिप मौजू पर अपने ख्यालात का इजहार किया। जी हाँ, यहाँ इस मौके पर एसडीपीआई पार्टी के एक्टिव लीडर जनाब मोहम्मद मोहसिन ने इफेक्टिव लीडरशिप टॉपिक पर बात करते हुए कहा कि नई पीढ़ी नई तवानाई में क़यादती सलाहियत को उभारना ही लीडर्स की असल जिम्मेदारी है। बता दिया जाए कि इस मौके पर यहाँ मारूफ समाजी सियासी शख्सियात ने शिरकत फरमाई और अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। आज कोली कबाड़ीगा समिति मेंबर्स की जानिब से गुलबर्गा शहर के पत्रिका भवन में प्रेस मीट की गई। जी नाजरीन, यहां पर कायम पत्रिका भवन से खिताब करते हुए इन लोगों ने बताया कि 29 अगस्त 2024 को बीदर जिला के बसवा कल्याण तालुका के गुनरतीर तवाड़ी में कोली समाज की कुमारी भाग्यश्री नामी एक खातून को अगवा किया गया और उसका रेप किया गया। जी हाँ, इसी के साथ ही कोली कबाड़ीगा समिति मेंबर्स ने यहाँ पर बताया कि 1 सितंबर 2024 को उस खातून की लाश झाड़ियों में बुरी तरह से फेंकी हुई पाई गई। बताया गया कि इस केस को अब बसवा कल्याण पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है। चुनाचे अब इन लोगों ने, इन मेंबर्स ने यहाँ पर डिमांड की और मुतालबा किया कि इस मर्डर में, रेप में जितने भी लोग शामिल हैं उन सभी की इन्वेस्टिगेशन करते हुए उन मुजरिमों को पकड़ कर सजा दी जाए, उन्हें इनकाउंटर कर दिया जाए। साथ ही यहाँ पर कहा गया कि इस मर्डर की गई खातून के घर वालों को मुआवजे के तौर पर अच्छी खासी रकम दी जाए। साथ ही इन मेंबर्स ने यहाँ पर कहा कि हमारी सरकार जो ये कहती है और नारे बुलंद करती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उस सरकार को चाहिए कि हिंदुस्तान में ऐसा कानून लाए कि रेपिस्ट को रेप करने वाले दरिंदों को सीधे सीधे एनकाउंटर कर दिया जाए, तब कहीं जाकर ऐसे हादसात हिंदुस्तान में कम हो सकते हैं। गुलबर्गा जिला के सेडम तालुका के अड़गी गांव में हाल ही में हुई तेज और मौसलाधार बारिश के चलते अड़गी गांव के कई सारे मकानात को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसको लेकर वहां की आवाम बेहद परेशान हाल है। यहाँ अड़गी गांव में मौसलाधार बारिश के चलते कई सारे मकानात को भारी नुकसान पहुंचा है। लिहाजा इन्हीं बारिश में हुए बर्बादी के और तबाही के चलते मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर शरण प्रकाश रुद्रप्पा पाटिल ने यहाँ गांव के कई सारे मकानात का दौरा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन लोगों और खानदानों ने अपने घर खोए हैं उनका ताल्लुका इंतजामिया के जरिए से सर्वे करवाया जाए और उन्हें फौरी तौर पर मुआवजा दिया जाए। इसी के साथ ही मीडिया के जरिए से आवाम तक अहम जानकारियां पहुंचाई गई और बताया गया कि ताल्लुका सतह के अहदेदारों को हिदायत दी जा चुकी है कि बारिश से तबाहशुदा इलाकों की फहरिस्त तैयार करके रिपोर्ट पेश करने के बाद इन मकानात, सड़कों और स्कूल के कमरों की इमदाद के लिए जरूरी कार्रवाई जल्द की जाएगी। इसी तरह की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।